معزز علماء اہل سنت، سامعین اہل سنت، خواتین اہل سنت، بچے اہل سنت، بوڑھے اہل سنت، جوان اہل سنت، مہمان اہل سنت، مسلمان اہل سنت، یہاں وہاں سب ادھر ادھر کھڑے پہلوان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجا کا کوالٹی بڑھیا کیجئے، عجیب طرح لگ رہا ہے۔ تھوڑا باجا والے سون والے کہاں ہیں؟ باجا آپ کا بہت اچھا ہے، ہم ہی لوگ ختم ہیں۔ باجا تھوڑا صاف کر دیجیے، باجا بہت اچھا بج رہا ہے آپ کا، باجا ٹھیک بج رہا ہے۔ یہ بچوں کو کیا ان لوگوں کو دینا ہے نا ابھی بعد میں، بچی لوگوں کی ہو گئی۔ چلیے ماشاءاللہ، دیکھیے جن کی بیٹیاں ہیں، جن کی بیٹی ہے وہ کتنے خوش ہوں گے۔ ابھی اسی پر تو میری گفتگو ہے کرتے ہوئے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ادھر دیکھیے، مجھ کو دیکھ لیے، اب سب مل جائیے، ایک ہو جائیے، اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کرے، بلند آواز سے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا صلاۃ وسلام لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ پروردگار، کہاں جو حد میں درود شریف نہیں پڑھتا ہے، راگ آدمی رہے گا نہیں، راگ آدمی رہے گا نہیں۔ ارے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں خوبصورتی؟ ارے بھائی دیکھ رہے ہیں، صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو۔ ارے یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کیونکہ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ باجا عجیب طرح لگ رہا ہے، ہمیں کو لگ رہا ہے، ہاں باجا تھوڑا سا پرابلم اتپن ہو رہا ہے، ایسا وہ سب میں آواز دیکھیں، یہ ایک مانیٹر ہونی چاہیے، اور پھر جیسا کام دے گا ویسے ہی کام ہوگا، پھر سوئے کام دے گا کہاں چلائے گا، جیسے ہو پیسہ ٹھیک دے، اس طرح بس کر اللہ ہے، کل ختم ہو جائے گا، بنگال ہو جائے گا، بہار میں جائے گا، سب کا پورا مجمع کہے سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر سنیے، اور یہ لوگ کیا سنے گا جس کا ماتھا خالی ہے، جا کے اب چوک میں کہے گا اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں نہیں بیٹا، تمہارا سر خطرہ میں۔ آج کل ہوتا یوں ہے، کہاں تقریر کریں، ان کے بیچ میں مسلمان نام رکھ کے، نام کے آگے محمد چھوڑ کے، جن کا بیٹا دیپاولی میں پڑاکا پھوڑے ان کا باپ کا اسلام خطرے میں ہو، جن کا بھائی دیپاولی میں گھر سے نکل کے جوا کے اڈا پہ جوا کھیلے وہ باپ کا اسلام خطرے میں ہو، جن کا بیٹا 1:30 بجے رات میں موبائل میں 300 ریچارج کر کے کیا کہتے پبجی فری فائر کھیلے وہ باپ کا اسلام خطرے میں، جن کا بیٹا شراب پی کر کے 1:30 بجے رات گھر میں گھسے وہ باپ کا اسلام خطرے میں ہو، ہاتھ میں گردن میں سکڑیا چین پہن کے آوارہ کے طرح گلیوں میں گھومے وہ باپ کا اسلام خطرے میں ہے، جن کا بیٹا ہاتھ میں کڑا بال ہے، کڑا روڈ کو روم رہا وہ باپ کا اسلام خطرے میں۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے، خطرے میں آپ ہو، آپ کا سماج ہے، آپ کے بیٹا ہے، آپ کے قوم ہے، آپ کا محلہ ہے۔ ارے میرا اسلام تو کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ اسلام مٹانے والے مٹ گئے، علماء
6-8 हजार तनख्वाह ले लेके आपको कब तक समझाएगी? कब तक? 50 साल से जनाजा पढ़ते हो, अब तक तुम्हारे जनाजा याद ना कर सके और जलसे में आकर के आवारा के तरह घूमते हो। 1:30 बजे राजा के चौपट पकौड़ी खाते हो तो इस्लाम खतरे में, तुम्हारा मुंह खतरा में। उलमा किराम 7-8 हजार तनख्वाह देते हो, उन पर भी हुकूमत जमा करके आप तो 50 क्विंटल पोल्ट्री मुर्गी खा गया मौलाना मौलवी बोलो साहब। देखो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, हटा के कहोगे इस्लाम खतरे में है। 50 जनाजा दफन कर दिया मुर्दे को, जनाजा पता नहीं दुआ जनाजा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। 50 साल से ईदगाह जाते हो ईद बकरीद की नमाज पढ़ने, पता नहीं ईद की बकरीद की नियत याद है कि नहीं याद है। हर जुम्मा जाते हो मस्जिद नमाज पढ़ने जुम्मा के दिन, पता नहीं नमाज का तरीका याद है कि नहीं याद है। इसलिए मदरसा कायम किया गया है। अपने बाल बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन के मकतब में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो, ताकि वो बेटा आवारा के तरह जलसों में गलियों में आवा नहीं घूमेगा, बल्कि बेटा चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बेटा बोलेगा गुलाम अली की तरह, बेटा देखेगा गुलाम खाजा की तरह, जब दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा के तरह। जरूरी है। आजकल मोबाइल से खेल रहा है। जिनके घर में तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, तेरे घर में यूट्यूब की आवाज आ रही है, फिर क्यों रोना रोते हो कि जब तेरा बेटा गलियों में सड़कों पे निकले जानवर गाय के नाम पे इसी आजाद भारत में मुसलमान को पीट पीट के मारा जा रहा है, 30 करोड़ रहने के बाद भी डरते हुए सामने हुए क्यों? हाई निकले तो यूरोपीय कानून लगा के जेल में डाल दिया जा रहा है। 50 साल 60 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर करके तोड़ दिया जा रहा है। 80 साल के मनुष्यों को आतंकवाद काटे बता के ताला लगा दिया जा रहा है। बेटियां घर से निकले तो उन्हें काम नोच ले। मस्जिदों पे सवाल, अजान पे सवाल, नमाज पे सवाल, सजदों पे सवाल। आखिर ये दिन क्यों देखना पड़ा भारत की धरती पे? वजह यह है कि तुम मुसलमानों घर में बैठे बैठे 5 वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में कुरान समेट के रख दिए हो, तिलावत करना छोड़ दिया, बूढ़े माँ बाप के पास 24 घंटा रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, आलमों से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, जलसे में बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। तो वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। आज नहीं देखते पूरे भारत में सोशल मीडिया खोलते हो कभी, बेटी का नाम नरगिस, शोहर का नाम संतोष, आई लव यू के चक्कर बेटी हवा। इसीलिए बेटियों को पढ़ाया जा रहा है। आज जो मदरसों में बेटियों को पढ़ाया जा रहा है ताकि तेरी बेटी का नीचे फातिमा बने। आवारा के चक्कर में मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज न करे। ये बेटियां कुरान पढ़ेगी, कुरान। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो बीबी फातिमा की चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी। इनाम दो, हाँ दे, इनाम दीजिए दीजिए, इनाम दीजिए। उनको दे दीजिए, बच्चों को रख दीजिए सामने से। जो भी इनामात देंगे बाद खिताब तकरीर होने दीजिए हजरत की उनके बाद। कोई भी डिस्टर्ब नहीं देने दीजिए। अब शौक है कोई, मुझको कोई डिस्टर्ब नहीं। हम तो मतलब भात खाइए, नहाइए, पिए, धोइए, नहीं सब कुछ हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, अपने मुंह में दीजिए ना। हम वो मामला नहीं डिस्टर्ब होगा, कुछ नहीं, सब सूख जाओ, कोई डिस्टर्ब नहीं, हम भी सूख जाएंगे। डिस्टर्ब हो 5 शिव कुश्ती पे शौक है, देने दीजिए। उम्र बहुत हो गई, हो सकता है ऐसा जलसा नहीं देखता है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह। आप लोग जगह जो है कमी खोई, जगह की कुछ कमी हो गई ना, अरे कुछ कमी हो गई बैठने की, तो हम क्या करें? माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेटियों को पढ़ाओ। आज देख रहे हैं कितनी बेटियों का नाम लिया, सब बेटियां नकाब पहन के चेहरा ढक करके किस तरह आई। लेकिन यही मुसलमान जब अपनी नई नवी दुल्हन को लाएगा बहू बना करके, तो वलीमा के दिन बहू को बनाओ श्रृंगार करके सोफा में बैठा करके, दूल्हा एक तरफ दुल्हन को एक तरफ, वलीमा का खाना पक रहा, मेहमान आ रहे हैं, गिफ्ट लेके गिफ्ट 45 रुपया कप लाएगा, लगता अंबानी बाप आ रहा।
कसम खुदा कहते ये रस्म बहुत खराब रस्म बना दिया है। अपनी नई नवी दुल्हन को जिस दिन वलीमा पड़ता है ना घर में, उस दिन दुल्हन को सोफा में बैठा देता है, बनाओ श्रृंगार करके, दूल्हा एक तरफ दुल्हन एक तरफ, लड़का उधर से आ रहा है, ऐसे स्टाइल से आ रहा, पेंट फटा है, चेन गर्दन में चेन है ना, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, हाथ में गिफ्ट लेके चला, लगता है एकदम अंबानी खानदान से उठ के आ रहा है। 45 टका कब कर रहा हूँ, ला के देगा लड़की हाथ में, भाभी भाभी गिफ्ट गिफ्ट दे लेगा, कहेगा सेल्फी। जिन बेटियों को निकाब में रखना चाहिए, तुम अपनी नई बहू को किसके देखने पर, कौन सा धर्म तूने देखा, कौन सा कानून पढ़ा के नई बहू को वलीमा के दिन चेहरे में रंग पुतला करके, पूरे बनाव श्रृंगार करके, दिखा करके गैरों के सामने परोस देते हो, उनको दिखाते हो, फिर तुम्हारी बेटियों को कोई छेड़ देख के रोना रोते हो। अरे कल तो अपनी बहुओं को अपने घर के सामने में चेहरा दिखाया था, खुदा के वास्ते ये चेहरा गैर मर्दों के सामने मत दिखाना मेरी माँ बाने। अगर शोहर को दिखा देगी तो नफल नमाज का सवाब मिलेगा, गैरों को दिखाओगे तो अज़ाब हो जाए। जरूरी है आजकल बनाओ श्रृंगार करके। ये मेरी माँ बहनें बैठी हुई है, मेरी माँ बहना तू श्रृंगार करना, चमके, क्रीम लगा, पाउडर लगा, सुरमा का सब लगा, बाल को सवा, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, मनाओ श्रृंगार कर, लेकिन श्रृंगार करके गैर मर्दों को सामने मत जाना, हटिया में, मॉल में, चौक में मत घूमना श्रृंगार करके। श्रृंगार करके शादी के घर में जाकर के मत बैठ जाना, बल्कि श्रृंगार करके शोहर के पास जाना, शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम करना। कसम खुदा को श्रृंगार के सदके में 2 रकअत नफल नमाज के सवाब मिल जाएगा। अगर 30 दिन श्रृंगार करेगी तो 30 दिन 60 रकअत नफल का सवाब मिलेगा। लेकिन ये माँ बहने घर में शोहर के पास श्रृंगार करके जाती है, जाएगी तो भूत की तरह, तब भूत घुस गया, शोहर के पास श्रृंगार करके जाती है, देखते हैं एकदम चुड़ैल के तरह। अगर 2 मतलब बीवी देखोगे डर जाओ। लेकिन यही बीवी जब कहीं शादी घर जाने लगे, वलीमा खाने लिए जाने लगे, कहीं शादी में दावत मिल गई है, तब मत पूछो, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा। कहाँ जाएंगे, आज दावत है, वलीमा जा रहे हैं, शादी घर जा, फिर लवली, फिर रिकॉर्डर, इतने पोत पात के निकलती है, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमरे बीवी एक नहीं। तब एक जगह हादसा हो गया, एक लड़का बीवी को लेके गया शादी घर, अब उसके बीवी घर में हमेशा मोटा मोटी रहती थी, वो हमेशा मोटा मोटी देखता था। जब बनाव सिंगार करके कुर्सी में बैठ गई, उसका शोहर ढूंढ रहा कि गई तो गई कहाँ, वहीं बैठा। शोहर 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, बीवी वहां बैठा है। बीवी बोले कहाँ, क्या बात है, कौन सी ढूंढ रहा है? बोले तो ही बैठा नहीं किया, तो ही। बोले हाँ हाँ हाँ। बोले घर में तो भूत के तरह दिखाते हैं, इतना अच्छा कैसे दिखा रहा है? बोले वहाँ आप अकेले देखते, यहाँ सब देखता है। देखना शादी घर गए कभी, ऑलमा से पूछिए, निकाह के लिए, इजाजत के लिए जब अंदर जाते हैं ना, तो शर्म लगती है कैसे जाए। इतना खराब सिस्टम हो गया गैरों को देख के। हर लड़कियां हाथ में मोबाइल है, चेहरा बनाओ श्रृंगार करके, दुपट्टा गर्दन में रख करके, और बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तर। बेटियों को कुरान पढ़ा दे, उनको दीन सिखा दे, कमीज़े फातिमा बना दे, ताकि बेटियां गैरों के सामने सेल्फी ना लेगी, चेहरा ना दिखाएगी, न किसी के साथ चैट करेगी, बल्कि बेटियां सोएगी तो जुबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला। 100% कामयाब। आप लोग थक गए, लेकिन मैं 2 घंटा बैठे बैठे थक गए। मुझको नहीं रहना चाहिए था। झारखंड की एक पहचान है, ब्रांड है पूरा हिंदुस्तान में। क्या लगता है आपको मैं कुछ नहीं बोलता, उसके मतलब क्या? मेरी एक पहचान, मुझको देखने के लिए परेशान रहता है। हिंदुस्तान में शायद किसी का इतना देखने के लिए परेशान होगा। उलमा तो बहुत है, खतीब नकीब हमसे बड़े बड़े हैं, लेकिन जिस रास्ते से गुजरते हैं रोक देता, बाबा एक सेल्फी, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए। लेकिन मैं अपने शोहरत का मैं फायदा नहीं उठा रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, घमंड नहीं करता। मैं कल भी जैसा था, मैं आज भी वैसे ही हूँ। ऐसा नहीं कि आज मेरी शोहरत मिल गई तो मैं आसमान पे जाके बातें करूँ, नहीं, ऐसी मेरी आदत नहीं है।
मैं खुद एक ब्रांड की पहचान हूँ। चलिए मेरे साथ, तब पता चलेगा। बड़े बड़े ऑफिसर लोग देखने के लिए परेशान रहता है। अभी रांची गया था, है ना, रांची के जो है सदर DSP SP आए थे मिलने के लिए। अभी भी फोटो आई है। बोले बाबा आपका बहुत बड़ा फैन है। हम बोले फैन है तो हम क्या करें, घूमिए। अब ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? किनकी दुआ? तो माँ की दुआ लोगे तब ना। कहीं माँ को पूछते हो बाजार जाते समय, माँ कुछ ला दें? कहीं बूढ़ी माँ को पूछ के जाते हो बाजार, माँ कुछ खाएगी? बाप को पूछते हो कभी, बाबा मोड़ जा रहे कुछ ला दें? कभी नहीं पूछोगे। बीवी को पूछोगे? नहीं तो खोजेगा, पूछेगा, तलाश करेगा कहाँ बीवी है। अगर घर में नहीं, आंगन में तो वहाँ, कुआं के पास है वहाँ, खेत में तो वहाँ, और नहीं मिला तो वहाँ बाजार जाके उठा के फोन, हेलो हेलो कौन सी कभी, बोल गुप चुप, लड़का चुप है, चुप 15 बोला के बीवी कोना में बैठ के मार बोल। बूढ़ी सास बेचारी पीछे से पूछ रहे हो बहू कौन सी करे। भैया अपनी बीवी को खिलाओ, गुनाह नहीं। अपनी बीवी को खिलाना तो रसूल की सुन्नत। अगर हो सके तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो तो रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी सलाम करना, अपनी बीवी, इसका भी ख्याल रखना होगा। और ना एक जगह तकरीर कर दिए, एक लड़का दूसरी बीवी सलाम कर दिया, मुखिया समिति आके बैठ गया। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत। इसलिए पढ़ाओ मर्दों को और मोबाइल से दूर रख दो बेटा बेटी को। आज इस मोबाइल ने इतना समाज के बेटियों को मुर्तद बना दिया है। मुर्तद 2025 के अंदर में सिर्फ 25 में 2200 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। खुदा के वास्ते अल्लाह ने रुपया टाका पैसा गोली दिया है, सही जगह इस्तेमाल करना। बेटियों को मोबाइल देके मत खमखयाली में रह जाना, वरना कितना घर उजड़ गया है, कितना बाप आत्महत्या कर लिया है, कितने माए जहर खा ली है। जवान बेटियां बाप के मोहब्बत को ठुकरा के, आवारा के मोहब्बत में पागल होकर घर छोड़ के चली गई है। इसलिए बेटियों को कुरान पढ़ा दो, मस्जिद में मदरसे में जाके दिखा दो। आलमा के पास रहेंगे, वो बेटियां बनेगी, कनीज़े फातिमा बनेगी। और जब वो बेटियां अपनी जुबान से इधर उधर की बात नहीं कहेगी, बल्कि नाते नबी गुनगुनाएगी। जब ससुराल जाएगी, शोहर गरीब होंगे, मजदूरी करके आएंगे, ये बीवी बन के शोहर को सलाम कर देगी। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। माशाअल्लाह जलसा बड़ा कामयाब है। मेरा टाइम तो बैठे बैठे खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मदरसा नहीं होता तो मैं कब के उठ के चला गया होता। लेकिन मदरसा का वास्ता था जो मैं बैठ गया। सही बता रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कल कहाँ था, परसों कहाँ था, क्यों बताएं? फिर हमको कल कहाँ जाना है, मेरी तबीयत कैसी है, हमको तबीयत खराब है, कैसा लगता है, हम आपको क्यों बताएं? आप डॉक्टर हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, मैं जवान भी नहीं हूँ। सैफुल्लाह आलमी साहब बताए मेरी उम्र 65 साल बताए, मेरी उम्र 51 साल है। मेरी भी उम्र कम नहीं, 50 पार कर गए। देखने में लग रहे जीट जाट, देखते हैं ये जान के धक में अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तबलीग भागलपुर में कर दिए। 3 दिन पहले 3 को बूढ़ा गाँव से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चावल का हेल बैठो, जन्नत भी करो। सही बात है। उलमा बैठे हैं, अल्लामा शमशीर साहब, जिनके मदरसे का तालिब इल्म आज आपके यहाँ स्टाफ बने हुए हैं, वो मौलाना शमशीर साहब के मदरसे के पहले तालिब इल्म थे, आज आपके यहाँ मुदर्रिस बने हैं। तो बताइए जब मुदर्रिस का ये आलम है तो उस मदरसे का आलम क्या है? सिद्दीक जिस मदरसे को आप चूबिया इलाके में क्या कहते हैं, सुगीता बांका डिस्ट्रिक्ट में है, देखे होंगे, कभी गए होंगे। हम बार बार जाते हैं। मस्जिद खूबसूरती, रहन सहन, डिसिप्लिन। भैया मैं सबसे कहता हूँ मुदर्रिस लोगों से, मदरसा कम ही बच्चा रखे लेकिन साफ सुथरा बढ़िया रखे, ताकि गार्जियन आए तो उस गार्जियन को लगे कि हाँ हम मदरसे में बच्चे को रखें। वरना एक दो मदरसा देखिएगा लगता है गोहाल घर है ना। गोहाल की तरह बच्चे को मत रखिए, बाप असर लेके जाएगा कि हम बच्चे को मदरसा में रखें, गोहाल घर में रखें। बच्चे साफ सुथरा हो, नहाए, डिसिप्लिन हो, जब भी दूसरे कपड़ा पूरा पहन के। वरना का वो मदरसा देखिएगा बच्चा एकदम दौड़ रहा चला गया, भुलमुड़िया माँ के आराम।
तो मदरसा बनाइए, कम ही बच्चा रखिए, ठोस बच्चा पढ़ाइए, उनके बाप से खुराकी लीजिए, है ना, खुराकी लीजिए। हर बच्चे, हर बाप को, गार्जियन को चाहिए कि मौसम खुराकी देके पढ़ाओ। आपका बच्चा घर में 1500 2000 खाता है, तो मदरसे में आप 1000 रुपये क्यों नहीं दे सकते भैया? आप उसी 1000 रुपया 1200 रुपया में आपके मदरसे में रहन सहन का, पानी है, बिजली है, रहन सहन सब दे रहा है। देखिए लड़का हॉस्टल में रहता है, पूछो ना 10,000 5,000 देता है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन ये बच्चे मदरसा में आ जाएंगे, हजरत हम गरीब हैं, और घर में देखो 22 इंच एलसीडी रखल। इसलिए मदरसे का भी ख्याल रखो। आज मदरसों को मिटाया जा रहा है, उर्दू लैंग्वेज को मिटा रहा है। आपको इसी झारखंड में नहीं देखे, आज आप तो जुमा की छुट्टी रख किया जा रहा है। कितना नेता मंचों पे बैठ करके कितने मुसलमान को, अभी वो कोई नेता इलेक्शन के टाइम में देखा कि नहीं, कोई नेता बोला कि मुसलमान की एक बेटी को लाओ भगा करके हम नौकरी सर्विस देंगे। कितना घटिया इस राजनीति करते हो, सत्ता में बैठ के दलाली करते हो। कोठा खोल दो, दलाली करना है तो राजनीति मत रहो। ये मुसलमान को दिन रात टारगेट क्यों करते हो? सत्ता के पुजारियों, दिन रात जब भी बैठा तो मुसलमान की बेटियों को भगा के ले आओ, और वो नेता लोग चुप, कोई बात नहीं। एक मुसलमान कुछ कभी देखे कि नहीं देखा अलीगढ़ में? अभी देखे 4 मंदिरों में आई लव यू करना, आई लव मोहम्मद लिख दिया था हल्का से, 8 मुसलमान को गिरफ्तार किया था। लेकिन 5 दिन के बाद पुलिस ने जब उसको तफ्तीश किया, ऊपर उजागर किया, तो उसमें हिंदू आदमी पकड़ा गया, लेकिन मुसलमान को भी तो बनाया गया। कहाँ हो? आई लव मोहम्मद भारत के धरती पे जाने पर आज 25 मुकदमा हो चुका है, 1347 आदमी को अभियुक्त बना चुका है, 117 आदमी को जेल में डाल चुका है। आजाद भारत में ऐसा हो रहा है, आई लव मोहम्मद कहने पे पाबंदी, आई लव मोहम्मद सड़कों पे लेके मत निकलो, आई लव सड़कों पे निकलने का नाम नहीं, नेतागिरी करने का नाम आई लव मोहम्मद नहीं, राजनीति करने का नाम आई लव मोहम्मद नहीं। आज तुम आई लव मोहम्मद करके सड़कों पे चले हो। अरे आज तक बहुत दिन पहले हजरत बिलाल ने मक्के के धरती पे आई लव मोहम्मद कहा था, मोहम्मद को दिल दिया था बिलाल ने, मोहम्मद से मोहब्बत किया था बिलाल ने, मोहम्मद से गोपना बनाया था लोटे बिलाल ने। तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पाँव रख देते तो जन्नत में हजरत बिलाल के पाँव की आवाज आया करके। आई लव मोहम्मद का तख्ती उठा के रोड में चलने का नाम मोहब्बत नहीं है। नापाक रह करके, पेशाब करके पानी नहीं लेते हो, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके दौड़ते हो, ये तो रोडों पर दौड़ने का नाम नहीं है। ये तो राजनीति वाला चाहता है कि मुसलमान सड़कों पे निकलेंगे, पत्थर मारेंगे, पत्थरबाज कहेंगे गंगा भड़केगा, राजनीति से देंगे। ये हम ख्याली करना, ये ख्याल लाना घर से निकाल दो। अरे जो मुसलमान होगा वो पोस्टर पे आई लव मोहम्मद क्यों कहेगा? अरे उसके दिल में मोहम्मद है, वो चलेगा कहेगा, हमारे सुबह जिंदा है।